ویلکم بیک ناظرین. عائشہ جمیل بیرسٹر ہیں, انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے. عائشہ ویلکم ٹو دی شو. تھینک یو. عید کے لیے تیار ہیں کل آپ؟ بالکل بھی نہیں, بہت تیاری ہونے والی. بہت تیاری ہونے والی ہے. کیا کیا رہ گیا؟ سب کچھ ابھی یا کیا کیا ابھی تک آپ نے؟ کچھ بھی نہیں کیا. میرے گھر سب مہمان آ رہے ہیں. فرائیڈے کا ہم نے رکھا ہوا تھا, تو اب اچانک مطلب کل ہو گیا. کل میں نے چھٹی لے لی ہے کام سے, تو اب تو انشاءاللہ عید بنائیں گے. ویسے عید 3 دن کی ہوتی ہے. اچھا. تو کل کی تو بالکل کوئی تیاری نہیں ہے, فرائیڈے کی کل کروں گی انشاءاللہ. آپ کا سوٹ ریڈی ہے کل کے لیے؟ سوٹ ہیں میرے پاس 2-3, ابھی میں نے دیکھنے ان میں سے کون سا ہے. میچنگ شوز, جیولری, سب کچھ کر لوں گی. یہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے نا ہم لڑکیوں کا, یہ بڑا ہوتا ہے. بس ہوتا ہے, مگر when you're working lady you don't think about it so much, اس لیے. لیکن I think کل میں اس کے بارے میں سوچوں گی کہ کیا کل سوچیں گے. تو کھانے میں کل کیا بن رہا ہے؟ کھانے میں ایکچولی فرائیڈے کا ہے ہمارا. کل یہ ہے کہ ہم سب مل کے باہر کہیں چلے جائیں گے, ریسٹورینٹ میں کھائیں گے. فرائیڈے کو میرے گھر میں سب 1 ڈش کریں. امی پلاؤ بنا رہی ہیں, اس لیے میرے سے چاول بالکل نہیں بنتے, تو میں چکن کا سالن, چکن اور روسٹ اور کوئی بینگن اور اس طرح کی چیزیں. اب سب کو مینیو پتہ لگ گیا, سرپرائز تھا, اب تو نہیں رہا. لیکن اور پھر آئی تھنک سو بدلنا پڑے گا. میری جو اسسٹنٹ ہو وہ چاپس کا سالن بنا رہی, کوئی روسٹ بنا رہا ہے. تو 1 ڈش پارٹی کے طور پہ سارے لوگ اکٹھے ہو جائیں گے, سب کے ڈفرینٹ فلیورز ہوئیں گے نا, مزہ آئے گا. وہ ساری چیزیں لے کے آ جائیں گے, تو پھر اس کے ساتھ ایک پوری پارٹی ہو جائے گی. پارٹی تو یہ ہے کہ امی آ رہی ہیں مینچسٹر سے. ہم لوگ ہمیشہ مینچسٹر جاتے تھے میرے گھر, اس دفعہ آپ کی طرف تو وہ آ رہے ہیں یہاں پہ, تو پورا دن اسنیکس رہیں گے, پھر شام کو کھانا پھر انشاءاللہ. آپ کو کچھ فرق لگتا ہے پاکستان کی اور یہاں کی عید میں؟ آئی تھنک آئی ایم ویری لکی, اس لیے کہ ہماری ماشاء اللہ فیملی بہت ہے یہاں پہ. لیکن جن لوگوں کی نہیں ہے آئی تھنک ان کو بہت کمی محسوس ہوتی ہوگی ضرور. فیملی گیدرنگ کو آپ مناسب ہوتی ہے یہاں پہ. چلیے ہمارے زارا سے پوچھتے ہیں. زارا, آپ کے لیے سب سے زیادہ ایکسائٹیڈ مومنٹ کیا ہے عید کے لیے یا چاند رات کے لیے؟ اپارٹ فرام دا فیکٹ جب آپ دیکھتے ہیں کہ مہندی کا کلر چڑھا یا نہیں چڑھا, آئی تھنک ایز اے گرل اٹس ویری لائک امپورٹنٹ کہ کلر اچھا لگاؤ. آئی تھنک میچنگ بینگلس because that can be quite difficult, you never get the right shade. And I think عیدی obviously, I think no matter how old you are, آپ کا دل چاہتا ہے کہ آپ کو عیدی ملے. So I think I'm looking forward to that. سب سے ایکسائٹنگ مومنٹ عیدی ملنے کا ہے. چلیے ہمیں ہمارے چیئرمین صاحب طاہر علی صاحب نے بھی جوائن کر لیا ہے, ان سے پوچھتے ہیں. طاہر صاحب, آپ کے لیے ایکسائٹنگ مومنٹ کیا ہے؟ السلام علیکم, نمستے, ست شری اکال, سب کو میری طرف سے عید مبارک ہو. اور جتنے بھی گیسٹ آئے ہیں ماشاء اللہ لکنگ ویری کلرفل. تھینک یو آل آف یو ٹو سپورٹ وینس ٹی وی. اور جنہوں نے بڑے روزے رکھے ہیں بچوں نے, سب نے, ان سب کو عید مبارک ہو. ان کو پتہ ہوگا عید کیسے مزہ آتا ہے, ایکسائٹمنٹ. جب ہم چھوٹے تھے تو ہم انتظار کرتے تھے کل عید ہے اور ہمیں فلانے انکل نے 5 روپے دینے ہیں, فلانے, میں کیلکولیٹ کرتا تھا کہ یہ 100-150 روپے کیسے ہوں گے. اینڈ دیٹ واز اے بگ اچیومنٹ. تو اسی لیے اب جب ہم بڑے ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی ہے, تو میں 5-6 سال سے یہی کام کر رہا ہوں کہ ہمارے وینس ٹی وی پہ جو سپورٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں لوگ, میرا پاکستان کے نام سے ہم لوگوں کو عیدی کریٹ کرتے ہیں جو آج ڈسٹریبیوٹ ہو گئی ہے. کل ہم نے پاکستان میں اسکول کے بچوں کو, ناٹ اسکول کے بچے, وائٹ کالر پیپل جو اپنے بچوں کو, وہ بیگ بھی نہیں مانگ سکتے, وہ مانگتے نہیں کسی سے, اور وہ آپس کے اندر لڑتے جھگڑتے یہ وہ کر کے گزارا کر رہے ہیں. اینڈ وی ہیو 700 بچوں کو ہم نے دیا ہے, ڈفرنٹ ایج ان کے. وہ تو آپ کافی سالوں سے کر رہے ہیں. مگر آج دوبارہ ہم نے وہ کر دیا ہے. جو لوگوں نے سپورٹ, پرسوں ترسوں بھی کافی سپورٹ تھی ہمیں یہاں پر. وی ہیو اے جنٹلمین محبوب خان ہو جوائن وینس ٹی وی, مانچسٹر اسٹوڈیو بھی کھل گیا ہے. تو اس کی سپورٹ سے ماشاء اللہ بے انتہا کال آئی ہے. لوگوں نے, ہم نے سب ان لوگوں سے صرف 1 پاؤنڈ ہی مانگا تھا, کیونکہ ہمارا اچیومنٹ جو ہے وہ جتنے پیسے آئے ہیں وہ خرچ ہو جائیں آج ہی اور چیپٹر کلوز ہو گیا. کل وہ نہ کریں, بلڈنگ بنا رہے ہیں 15 سال ہو گئے ہیں, وہ بلڈنگ ہی پوری نہیں ہو رہی, مسجد ہی پوری نہیں ہو رہی. سو آئی ایم سوری, دوز اچیومنٹ از ڈن اینڈ آئی ایم ویری پراؤڈ کہ آج آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہیں. انشاءاللہ یہ اچیومنٹ یہی ہوتا ہے کہ بچے کو پتہ ہوتا ہے کہ میری عید ہے. ہم تو بڑے ہو جاتے ہیں تو ہماری تو عید روز ہی ہوتی ہے, روز ہو جاتی ہے. بالکل, ایسے ایسے لوگ ساتھ بیٹھے ہو تو میری عید پھر تو ویسے عید ہے. تو آپ ان کو 7 بجے بلایا تھا اور یہ لوگ 9 بجے. آئی ایم سو سوری, میں آپ سے معذرت چاہتی ہوں. سوری نہیں ہے,
There's no sorry. Live TV पे कोई sorry I नहीं know, होता. I know. बिल्कुल। but There's no traffic excuse. बहुत था। नो एक्सक्यूज, बिल्कुल ठीक है। आपको 6 बजे यहाँ होना चाहिए था, बिल्कुल प्रिपेयर मेकअप अपना करते हो, घर पे करने के बजाय यहाँ आके करते हैं, हाँ है ना। मेहंदी लगाते देखे माशाल्लाह, मैंने लगानी है अभी। हाँ मैं आपके लगाऊंगी, आप भी करने बिल्कुल के होनी लिए। चाहिए। I'm अच्छा so ताहिर sorry साहब, about आपने कहा कि आप कैलकुलेट कर लेते थे कि 100-150 रुपया मुझे मिलना है, तो जैसे मैंने आज कैलकुलेट कर लिया, अदनान भाई मुझे 50 पाउंड देंगे। अच्छा और आप मुझे 50 पाउंड देंगे। आपसे लूंगा, छोटा हूँ आपसे। अल्लाह, नहीं आंटी आप देंगे इनको। अंकल क्या कह रहे हैं? मैं तो ग्रैंड मदर कहने लगा था। अल्लाह मेरी हिजाब से। अच्छा ताहिर साहब, वो आपका टारगेट पूरा हो जाता था? हाँ, उस जमाने में हो जाता नहीं होगा। होता था, हम बड़े ढीठ होते थे। अच्छा हम जाके उस मामू के अंकल के पीछे घूमते रहते थे कि वो उसको शर्मिंदा करें और वो निकाले। अच्छा जब वो देता था सिर्फ 5 रुपए, अच्छा, दूसरे मामू ने तो 10 रुपए 10 रुपए दिए थे। हाँ, कंपटीशन करवा दिया। करवा देते थे। तो मतलब उस टाइम से हम आदत सी हो गई। आदत थी, इवलनेस हमारे में अभी सारा भी है। आपने मैक्सिमम कितनी ईद इकट्ठी की एक साल में? मैंने एक साल में तो नहीं, एक ही साल में एक ईद होगी, मैं ख्याल से अबाउट ओवर 1000 पाउंड हाँ? ऑनेस्टली। 1000 पाउंड से ऊपर। मैं 100 से कम तो नहीं लेती किसी से। क्या कह रहे हैं आप? ठीक ठीक। I'm a जरा 100 I feel so 100 left proud. out now. शायद मुझे अब और भी ढीठ होना चाहिए। और मैं आप क्या, लोगों के 100 साथ पाउंड बहुत कम नहीं सीखे जा करना। रही हूँ। We are grown up, we आप have फिक्र to ना have- करें, कल ईद है, आपको भी समझ आ जाएगी। अच्छा सारा आपको कितनी ईद मिली मैक्सिमम? I don't actually remember, क्योंकि हमें जितनी जैसी मिलती थी हम फ़ौरन मामा को दे देते थे, क्योंकि हम खाने में या बाकी चीज़ों में इतने डिस्ट्रैक्टेड होते थे या बाकी बच्चों से खेलने में इतने मसरूफ़ होते थे कि हम भूल जाते थे कि पैसे कितने मिले, कहाँ हैं। तो हमारी अम्मी हमसे ले लेती थी ताकि जब हमें याद आए तब उनके पास पैसे होंगे, कहीं बेड के नीचे पड़े हुए नहीं होंगे। अच्छा मतलब वो कोई इधर उधर नहीं एक्चुअली वो होते थे। एक्साइटमेंट सही कह रही है, क्योंकि हमारे साथ भी ये होता था, हम अचीव वो कर लेते थे, Yeah. उसके बाद ऑटोमेटिकली हमें अजान कहीं और ब्रेक पे लग जाना है, वापस आके फिर और बातें करेंगे, आपसे पूछेंगे कि आपकी कितनी मैक्सिमम ईद आपको मिली थी। वी टेक ए शॉर्ट अजान ब्रेक, प्लीज स्टे विद अस। वेलकम बैक। जमशेद रियाज मैं हूँ। अभी माफ़ी चाहता हूँ कि आपसे ट्रैफिक में स्टक होने की वजह से मैं थोड़ा सा लेट हो गया था, लेकिन जैसे कि आप देख रहे हैं कि चांद रात वीनस टीवी पे बड़े खूबसूरत और बड़े प्यारे अंदाज में पेश की जा रही है कि जैसे कि वीनस फैमिली और वीनस दोस्त हम सब लोग मिल के आज चांद रात मना रहे हैं और इंशाल्लाह कल ईद है। सबसे पहले आप सबको मेरी तरफ से चांद रात और ईद मुबारक। और इस तरह मैं मेरे साथ बैठी हैं सारा और अदनान साहब काफ़ी देर से प्रोग्राम कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में बड़ा अच्छा प्रोग्राम किया। मैं एडो ट्रैफिक में सारा प्रोग्राम दे दिया आपको, बल्कि फिर भी मैं शामिल हो गया हूँ। तो आज वीनस में बड़ा हमारी चांद मनाई जा रही है। ताहिर साहब ने बड़ा खूबसूरत इंतजाम किया। तो कैसे चल रहा था सब कुछ? सब कुछ बहुत से चल रहा है, आपकी कमी बड़ी महसूस हो रही थी, तो आप पता नहीं क्यों ट्रैफिक, आपको पहले निकलना चाहिए था कुछ देर। अब बस एक्चुअली वो ट्रैफिक चले ट्रैफिक तो होगी। आप ईद कैसे मनाते हैं जमशेद? मैं ईद बाकी मुसलमानों की तरह बड़ी अच्छी मनाता हूँ। सबसे पहले नमाज पढ़ता हूँ, बल्कि सवैयाँ खा के घर से निकलते हैं नमाज के लिए, तो फिर नमाज पढ़ के यही कि फैमिली के साथ जैसे मनाई जाती है ईद, और फिर बच्चों के साथ, फैमिली के साथ, फिर बहन भाई सब आते हैं, तो इस तरह मिलजुल के फ्रेंड्स की तरफ जाते हैं। इसी तरह ईद का दिन इसमें जो सबसे अहम चीज़ होती है कि ईदी देनी, जी उसका नहीं आपने जिक्र किया। किस किस को ईदी हाँ जी, देते ये सबसे पहले हम एक ज़माने में हम ईदी लिया करते थे, नहीं अब हम देते हैं। किस किस को, शुरू कहाँ से करते हैं? शुरू मैं करता हूँ सबसे पहले अपनी वाइफ से। अच्छा, सबसे पहले क्योंकि हेड ऑफ डिपार्टमेंट, उसको पहले ईदी देनी, होम ऑफिस को देनी है, फिर उसके बाद अपने बच्चों को। तो फिर इस तरह जैसे अजीज अकारब आते हैं, मतलब फैमिली के बच्चे हैं, उनको दोस्तों को नहीं देते? दोस्तों से लेते हैं। आपसे इस दफा ईद लेनी है मैंने। मैं भी ये कह रही थी, क्यों सर, हमें ईद लेनी है, बिल्कुल लेनी है। ये बहुत लेकिन आप शो कर रहे हैं, आप हेड हैं, तो आपसे ताहिर साहब से हमने ईदी लेनी है सब। नहीं, ताहिर साहब बल्कि अब ईदी लेके जाएंगे हम, ताहिर साहब से तो मैं भी हर साल लेता हूँ, क्योंकि हम ईदी, आप एग्री करते हैं, हम ईदी मेरी तो लेके जाएंगे ऐसे आज। मेरी तो देर आने से क्लास हो चुकी है क्योंकि मुझे बहुत देर हो गई, 1-1.5 घंटा मैं लेट हुई, हालांकि 6 बजे शुरू अच्छा जारा से पूछते हैं। जारा जी, इस दफ़ा कोई ख़ास एक्सपेक्टेशन है आपकी ईद के लिए कि कुछ ख़ास चीज़ मिलेगी आपको? नहीं, alhamdulillah, I've got a lot this year. I came here in my very own car this time round, so I don't need anything. Yeah, just आपकी दुआएं and दुआएं for a good future. I'll be happy with that. मिस्टर साहब, आपने ईद देनी ज़्यादा है या कुछ लेनी भी है? नहीं, देनी ज़्यादा है। बहुत माशाल्लाह बच्चे हैं, ये एक तो मेरे बेटे हाँ जी, बैठे आपका हुए हैं बेटा यहाँ है। पे साहल, तो आई थिंक इन लोगों को उम्मीद होती है, इस एज में उम्मीद ज़्यादा होती है कि हमें ईद ही मिलेगी।
अच्छा हमें देनी पड़ती है। तो आप भी अपने बेटे को ये दे रही हैं? हाँ, ये मेरा एक छोटा सा बेटा है, इसको मैं ज़रूर ईदी दूंगी। ही इज़ एक्साइटेड। सुबह नमाज के लिए लेके जाऊंगी, दोपहर को बाहर लेके जाऊंगी, शाम को घर में फिर ईदी ज़रूर सिर्फ दूंगी। एक को दोगे, दूसरे को? एक ही तो है फिलहाल। अच्छा ठीक है। इस दफ़ा तो आपको पता कि माशा से बड़ा अच्छा रमज़ान, लेकिन बड़ा बहुत गर्म अच्छा, बड़ा रमज़ान गया, बड़ा लंबे रोज़े अल्हम्दुलिल्लाह। थे, और सब मुसलमान भाइयों ने इंक्लूडिंग हम सब ने भी 18 घंटे का रोज़ा अल्लाह ने इस दफ़ा सब्र का इम्तिहान अच्छी तरह लिया है। लंदन में, इंग्लैंड में, यूरोप में अल्लाह ताला ने बड़ा अच्छा इम्तिहान लिया कि मुसलमानों 19 घंटे का रोज़ा है। आपको मुबारक हो, आप पास हुए इस इम्तिहान में। बस ये अब अल्लाह जानते हैं, आप भी पास हुए थे। लेकिन कोशिश है कि पास होना चाहिए था। और अल्लाह की मतलब बारगाह में हमारे आप अल्लाह के नेक आदमी हैं, आप बिल्कुल पास इसमें कोई शक नहीं माशाल्लाह। आप देख रहे हैं मतलब आप पास हैं। लेकिन इंसान के चेहरे से पता चल जाता है कि वो कितना नेक है। माशाल्लाह आप भी नेक हैं, हम सब नेक हैं, हम सब एक हैं, हम सब नेक हम सब हैं। एक कुल्लू वाहिद। तो जैसे कि मतलब टाइम तो कम रह गया बड़ा, लेकिन बातें बहुत थी। लेकिन अदा से फिर भी वीनस की महफिल सजी हुई है, चांद रात सजी हुई है, सब कोई पे करते हैं, ठीक है। मतलब कोई सिर्फ ईद वही मैं कह रहा हूँ कि आज कोई की भी जो जो स्पेशल है होते हैं सब जी, ये सबसे बड़ी बात है। फिर मैं ये जरूर कहूँगा नाज़रीन सबको कि जब आप भी वीनस टीवी देखते हैं, कोई ना कोई हंगामा, कोई ना कोई शुगल, कोई ना कोई चीज़, ताहिर अली साहब, रुखसाना अली, कोई ना कोई महफिल यहाँ पे सजी रहती है। और देखिए इफ्तार पार्टियाँ भी इस दफ़ा काफ़ी हुई हैं माशाल्लाह। सब दिवाली होती है, होली होती है, बैसाखी होती है, और फिर जो दूसरे रिलीजियस चीजें होती है वो भी होती है। तो ये एक कम्युनिटी चैनल है, इस पे सब कुछ होता है। सब ये कोई तफरीक सब नहीं है कुछ कि होना किसी चाहिए, बिल्कुल एक खास कम्युनिटी के लिए जी जी नहीं, बिल्कुल सबके लिए, बिल्कुल बिल्कुल सबके लिए। चलिए ईद कल हम सब मना रहे हैं। ईद एक ऐसी रोज़ों के बाद जो होता है, इसमें बड़ा एक स्पिरिट होता है। तो आप एक स्पिरिचुअल मोड से निकल रहे होते हैं, खुशी में जा रहे होते हैं। तो इसमें मैं चाहता हूँ क्विकली आप जो इसको प्रोग्राम को वाइंड अप करना है, 10 सेकंड में एक छोटा सा स्वीट एंड शॉर्ट मैसेज दे दें। जी नाज़रीन, वीनस टीवी के तमाम व्यूज़ को और तमाम उन लोगों को जो वीनस टीवी को अपने प्यार से सपोर्ट करते हैं, मैं भी जाता हूँ, बड़ा रिस्पेक्ट और रिगार्ड करते हैं। ईद के मैसेजेस दिए उन्होंने, इनके लिए मैं आपको सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ। और आप सब ईद गुजारें अपनी फैमिली के साथ। तो बहुत चार आपसे बातें करें, टाइम नहीं है। ईद मुबारक कह दें जी बस। आप तमाम लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। जी ज़ारा, ईद मुबारक कहेंगी या कुछ और? Eid Mubarak to everyone, including those who might still have exams, because I know some people still have exams. जी बहुत लंबे मुश्किल रोज़े थे, इसलिए जिन्होंने रखे उनको ख़ास ईद मुबारक। चलिए, आपने हमारे ये खसूसी ट्रांसमिशन देखी, आई होप कि आपने इसको एंजॉय किया होगा। कल ईद है, ईद मनाएं। जो लोग कल परसों मना रहे हैं उनको भी ईद मुबारक, कल सबको ईद मुबारक। और आखिरी बात कि जब हम खुशियाँ मनाते हैं उनको मत भूलें, जिनके पास वो खुशियाँ नहीं होती उनको भी अपनी खुशियाँ में शामिल कीजिए। अदनान खान वीनस स्टूडियो से इजाज़त देता है। बाय बाय फॉर नाउ। अल्लाह हाफ़िज़।